आना आना 90 बेटा. Anybody? So here, what we have? The first particular problem, what we can have over here. सर यहाँ पर हमने बहुत सारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस किए हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आल्सो, बट we have not used the equations of motion to find out the values through the graphs. आप लोग अब देखें जरा, हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. हम लोग ग्राफ की हेल्प से एंड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन फाइंड आउट मेनी मोर वैल्यूज विच कैन नॉट बी सॉल्व, ठीक है, जो कि आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते. अब देखिए, हम लोग ग्राफ का यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज करेंगे, और दोनों चीजों को मिक्स करके हम लोग क्या अलग तरह के पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब जो चीजें आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और यहाँ से बहुत ही जो डिफरेंट आंसर्स हैं, जो टिपिकल वैल्यूज हैं, जो मेजर करना बड़ा ही मुश्किल है, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे. तो आप लोग देखें जरा, ठीक है. Here is the first particular problem. You can just see. देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने क्या किया, I have drawn this particular graph. Okay? मैंने एक ये सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ किया. पहले एक इजी ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, the easy one. And let's go down. तो ग्राफ में इजी ले लेता हूँ. टाइम, it is in second बेटा. Okay. And here, what is it? It is 2, it is 4, 6, and it is 8. 2, 4, 6, 8. Am I right? It is 2, 4, 6, 8. Here the time is 10 meter per second. Sorry, velocity 0. Here the velocity is this, and यहाँ पर velocity है बचा 20 meter per second. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है. Is there any problem? Graph is understood to all. We have drawn the velocity time graph. We have drawn the VT graph. अब देखिए सर आप लोग, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, यहाँ से A, B, C and D. If I will ask what is the acceleration? What is the acceleration from A to B? Easily you can find out within the seconds. Sir, final minus initial divided by 2, you will get the acceleration. Okay, am I right? Similarly, if I will ask where the acceleration is 0, so you will just say where the from graph C to D, the velocity is constant almost. Yes. Velocity is constant, and the velocity at point C is 10 meter per second. At point D, it is almost the 10 meter per second. That's why the velocity is constant, so acceleration will be equal to 0. Am I right, guys? Okay. Yes, sir. Yes, sir. If I will ask what is the distance covered by the body, you will find out the area under the curve. You will find out the area under the curve. तो ये सब चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं in the previous online classes. But today, अब जरा देखिए, कितने स्टूडेंट मुझे आंसर बता सकते हैं? Find out the velocity. आपको वेलोसिटी बताना है, वेलोसिटी एट 0.5 सेकंड. कैन यू टेल मी द आंसर? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वेलोसिटी 0.5 सेकंड पर कितना होगा? सर 10 मीटर. क्या आप लोग, सॉरी सर 10 मीटर पर सेकंड. 10 meter per second. You are just saying 10 meter per second. बेटा यहाँ पर देखिए, when the time is 4, when the time is 4 seconds, the velocity is 10 meter per second. Beta, it is not confirmed. You can guess about that. Okay, you can only guess about that. Sir, but if it is given that C2D is constant velocity, then at 5. Sorry, speak loudly, beta. Sir, it is given that C2D has a constant velocity, then at 5 it will be 10 only. Okay, it may be, but beta, we are not sure about that. मैं अगर आपसे पूछूंगा what is the velocity at 1 second? At 1 second. मैं अगर आपसे पूछता हूँ what is the velocity at 1.2 second, तो आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. Am I right? Is it easy to solve? ठीक है? It is quite difficult to calculate that. ठीक है? But I know that the few students still they can find out the answer because they know how we can solve. Here we will take the help of Newton sir. हम लोग यहाँ पर न्यूटन सर की इक्वेशन की हेल्प लेते हैं और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं.
अभी तक हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड की हेल्प लिया था. नाउ वी विल टेक द हेल्प नॉट ओनली द ग्राफ, इवन द न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस आल्सो. यस बेटा. Yes. Sir, can you please tell that why we are not sure that at 5 it will be 10 or not? बेटा एक्चुअली वी आर नॉट श्योर. यहाँ पर मुझे पता होना चाहिए कि सर यहाँ पर जो आपने वैल्यू कैलकुलेट किया है, जरा देखा आप. अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये देखो, ये मुझे 0, 1 और 2, अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूँ तो मुझे देखने में यहाँ पे लग रहा है कि सर यहाँ पर तो मेरे पास कितना होगा, जब टाइम 1 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा. एम आई राइट? और जब पर्टिकुलर अगर टाइम को मैं 0.5 सेकेंड लूंगा तो ये मेरे पास कितना होगा, इट शुड बी अराउंड 5 मीटर पर सेकेंड. ये देखने से लग रहा है मुझे. एम आई राइट? यस. ये मुझे देखने से लग रहा है. बेटा हमेशा याद रखिएगा, ये मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ, आई हैव नॉट ड्रॉन दिस पर्टिकुलर ग्राफ व्हाइल मेंशनिंग द एक्स एक्सिस. मैंने यहाँ पर एक्सिस रूल नहीं लगाया है कि लेट अस सपोज 2 पॉइंट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 3 पॉइंट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड. डू वी हैव लेटेड दैट? नो. मैंने तो रफली बना दिया. सो बेटा आई एम, हाउ गुड आई से कि मैंने जो बनाया वो 100% बिल्कुल स्केल के अकॉर्डिंग है. मैंने कोई स्केलिंग लेट किया है यहाँ पर? टेल मी, क्या मैंने यहाँ पर कोई स्केलिंग लेट किया बेटा? नो सर. That's why this is the main problem. Okay, so how we can solve that? कोई मुझे बताएगा? Yes, Sir, class. we will find acceleration and then we will use v equal u plus at. Very nice. You have. Yes. Very good. बहुत बढ़िया. अब देखते हैं इधर. तो बेटा यहाँ पर 0.5 पर अगर पूछ ले, 1 पर अगर पूछ ले और 1.2 पर अगर पूछ ले, तो सर हम लोग we can calculate not only the velocity over here, beta you can calculate the distance also, you can calculate the displacement also. ठीक है? I know that some of the student can solve it very easily. First of all, what the logic you will apply over here? ठीक है? Just check it out. देखिए, क्या बेटा A to B acceleration आप लोग निकाल लेंगे? Tell me class. Is it possible? Yes sir. Yes. Great. और बहुत ही आसान. All the student can find out the acceleration from A to B. How much? Final is 20. Sorry. Initial is 0. Final is 20. Initial 0. Time is 2. 10 meter per second square. 10 meter per second. बहुत बढ़िया. It should be 10 meter per second square. And it is fixed. इसका मतलब ये है, बॉडी अपना मोशन सर जी 0 से शुरू करती है और जाते 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 तब तक 2 सेकंड हो जाते हैं. बॉडी की वेलोसिटी 1 2 3 4 10 15 19 18 20 मीटर पर सेकंड तक बढ़ती है. टिल 20 मीटर पर सेकंड तक इसकी वेलोसिटी बढ़ता है. इज दैट क्लियर टू ऑल? तो इसका मतलब ये हो गया सर कि यहां से लेके यहां तक, here to there, the complete graph would have the same acceleration. Am I right guys? Yes sir. Tell me. क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रेकेज नहीं है. और आज के बाद याद रखें, आपको बहुत ही इजी पॉइंट बता रहा हूं और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं. जब तक ग्राफ टिल्ट नहीं हो जाता अपने पास से, तब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है. जब तक ग्राफ अपने पाथ से टिल्ट नहीं हो जाता, इट डजंट गॉट चेंज, इट डजंट गॉट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है. इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेके A to B तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा सर जी. B से लेके C तक अगेन द एक्सेलरेशन विल बी द कांस्टेंट बेटा. On C to D again the acceleration will be constant. Am I right guys? Tell me. Is that clear to all? याद रहेगा ये point? Good. Fine. Yes, sir. So acceleration is this one. And what has been asked to you, sir? Now we will just take the help of the Newton sir. तो न्यूटन सर ने हमें ये कहा था, मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं. We have 3 particular equations. So first of all, and I'm just asking, just calculate the velocity. Just calculate the velocity at 0.5, 1 and the 1.2 second, बेटा. ठीक है? तो 1.2 सेकंड के यहाँ पर मीट आउट करेगा, 1.2 सेकंड के यहाँ पर मीट आउट करेगा. बट आई एम सो कंफ्यूज, what should be the velocity over here? मुझे ये वेलोसिटी निकालनी है सर जी, मुझे ये वाली वेलोसिटी निकालनी है सर, और मुझे ये वाली भी वेलोसिटी निकालनी है सर. इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, नॉट डिफिकल्ट. अब आपको देखने में लग रहा होगा
ठीक है. Those students who were just asking, sir, why not? It could not be the 10 meter per second. Now my question is there. Can you just guess about? क्या ये 12 मीटर पर सेकंड हो सकती है वेलोसिटी? क्या ये 12.1 मीटर पर सेकंड हो सकती है? Is it could be the 14 meter per second? How is it possible? You could say, sir, that should be the. मुझे यहाँ पे जो सेपरेशन दिखाई दे रहा है, लग रहा है मुझे कि सिर्फ 5 पीस में डिवाइड कर देते हैं. If I will divide it in the 5 piece, so definitely there would be the velocity around the 12 meter per second. Okay, which may be wrong. Which may be wrong. So हम आपको कोई ऐसा तरीका नहीं सिखाएंगे जो आपको आगे जाकर परेशान करे. तो ऐसे गैसेस नहीं लगाना, सॉल्व करना है. You are the physics student. You will have to go through reason, why and how. Why and how. How को मैं बता रहा हूँ और why मैं आपको बता चुका. क्यों नहीं कर सकते? Now you know that. So there is a problem. क्योंकि हम लोग गैस कर रहे हैं और फिजिक्स में गैस नहीं चलता. ठीक है. You will have to prove. करेंगे कैसे? Now let's go through. So बेटा हम न्यूटन सर की हेल्प लेते हैं. अब यहाँ पर देखिए v is equal to u plus at हो गया मेरे पास. ओके नाउ, और मैंने आपसे ये कहा जब तक मेरे पास ग्राफ सेम होता है एंड इट डजंट गॉट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, तब तक एक्सेलरेशन सेम रहता है. तो बच्चे फाइनल वेलोसिटी देखिए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यहाँ से शुरू करते हैं, 0. तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड इट इज इक्वल टू 0. बहुत बढ़िया, ये तो हो गया मेरे पास 0. एक्सेलरेशन आप लोगों ने सॉल्व करा बच्चे 10. सबसे पहला पॉइंट 10 into 0.5. 10 into 0.5. वेरी नाइस. बिकॉज आपने कहा सर वेलोसिटी बताइए. कब बताइए? अरे सर 0.5 सेकंड पर बताइए. ठीक है, ये रहा 0.5 सेकंड. तो 0.5 सेकंड मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू विल गेट इट ओवर देयर. तो जब मैंने यहाँ पर So 5 meter per second. वेरी नाइस. तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 5 मीटर पर सेकंड आपको वेलोसिटी मिल गई. दिस इज द वैल्यू. तो इसका मतलब ये हुआ वी कैन यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन टू फाइंड आउट द these particular values जो कि ग्राफ से एकदम से पता नहीं चलता, which is very difficult to calculate. Similarly you can calculate for the 1 second guys. v equal to u plus at बेटा. तो 0 plus 10 into 1, it is the 10 meter per second. ये तो मैच हो गया सर. देखो ये तो मैच हो रहा है. ओके नाउ द थर्ड वन, v is equal to 0 plus 10 into 1.2. how much it should be? 12 meter per second. तो ये मेरे पास वेलोसिटी, यस ये मेरे पास वेलोसिटी निकालने का तरीका आ गया. गॉट इट? समझ में आया आज के बाद? तो आज के बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बेटी यहाँ पे मुझे वेलोसिटी बताओ, यहाँ से वेलोसिटी बताओ, यहाँ पर वेलोसिटी बताओ, सो आई कैन कैलकुलेट इन द वेरी इजी वे. इज इट ओके? ओके क्लास, टेल मी. Yes sir. बहुत बढ़िया. Similarly, can you calculate? Can you calculate? Yeah. Sorry, should I repeat it again, beta? Repeat again. Excuse me, sir. Yes, bache. Sir, in Yeah. all these cases, u will be 0. Yeah. Whenever you will take. Very nice. Whenever you will take, the graph should starting from here to there. Here to there. But एक स्टूडेंट कहता है सर मुझे यहाँ से ग्राफ शुरू नहीं करना, मुझे तो यहाँ से यहाँ तक शुरू करना है, मुझे यहाँ से यहाँ तक शुरू करना है. ओके कैलकुलेट. देखिए अब मैं इनिशियल वेलोसिटी किसको लेट करूंगा, समझिएगा बात को. अब मैं इनिशियल वेलोसिटी लेट करूंगा 5 मीटर पर सेकेंड और आपने कहा जस्ट कैलकुलेट द वेलोसिटी एट 1 मीटर पर सेकेंड. तो बेटा मुझे यू पता है इस बार. दिस टाइम आई नो द यू एंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड. सर आपने मुझसे पूछा है v, तो अगर मुझसे v पूछा है तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड आया, बट आई विल प्रूव इट. यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए. आप पूछ रहे हैं कि हमेशा u को हम 0 लेंगे. बेटा ग्राफ मेरा 0 से शुरू हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग u इक्वल टू 0. और आप नहीं लेना चाहते सर मुझे तो चेंज करना है, मुझे और कोई तरीका बताइए, जस्ट गिव इट मोर इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहां से लेके यहां तक का ग्राफ कंसीडर कर लिया. एंड आई टोल्ड यू बिफोर, when the graph is still same, acceleration never get changed. When it is the same, the acceleration never get changed. तो here बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो u हो गया बेटा. am I right? भाई यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए. तो u Yes, मेरे पास sir. कितना 5 मीटर पर सेकेंड, और आप मुझसे कह रहे हैं यहाँ की वेलोसिटी निकालिए. बहुत आसान है.
मैं इसको विद इन द सेकंड सॉल्व कर सकता हूँ। इसको रब कर दें। Yes, sir. रब दिस Yes, sir. Yes, sir. दिस पर्टिकुलर पार्ट, हैव अ लुक। देखिए, तो आपने कहा सो बेटा v इक्वल टू u प्लस 80। आपने मुझसे कहा v निकालिए, u कितना है 5, एक्सेलेरेशन सेम होगा सर, इट इज 10। अब टाइम की प्रॉब्लम है, आपने ग्राफ कहां से कहां तक लिया है? ग्राफ आपने लिया है 0.5 से, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट 1, एम आई राइट? यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट 1। तो बच्चे कितना टाइम हो गया यहाँ से यहाँ तक? कितना टाइम हो गया बेटा? हाउ मच? 0.5, sir. So 0.5. 0.5 seconds. 0.5 सेकंड। तो मैं राइट, ये हो जाएगा मेरे पास 0.5 सेकंड। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 5। तो मेरा आंसर देखिए कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। हमने जो कहा वो प्रूव किया। इज दैट क्लियर गाइस? टेल मी, इज इट ओके? Yes, sir. फाइन, गुड, ठीक है। तो मर्जी आपकी है। नाउ द चॉइस इज ऑल योर्स। अगर आप चाहते हैं यहां से लेके यहां तक अप्लाई कीजिए, सर ये वाला u हो जाएगा, ये वाला v हो जाएगा, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। आप चाहते हैं यहां से लेके यहां तक अप्लाई करना, तो बच्चे ये u होगा, ये आपके पास v होगा, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। किसी को कोई डाउट? यस क्लास, No, sir. नो डाउट, वेरी नाइस। ना बट आई हैव अ डाउट, सो हियर कैन यू आल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट? क्या आप लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं 0 to 0.5 सेकंड तक के लिए? ठीक है, क्या आप 0 से लेके 0.5 सेकंड, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये बताइए बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में? 0.5 सेकंड में। कैन यू कैलकुलेट? 0.5 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस क्लास, बिल्कुल कर सकता हूं सर। 0.5 सेकंड ये रहा, और यहां पर मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस और Area of डिस्प्लेसमेंट। triangle. बहुत Area of बढ़िया, triangle. very nice. So if I will go through the area of triangle beta, if I will go through the area of triangle, then what you will get? Area of triangle क्या हो जाएगा? 1 by 2 into b into h. Yes, base कितना है बच्चे? 0.5। हाइट कितना है आपके पास? 0.5। just divide that particular one, 25 into 5 कितना आएगा? 125. So according to me you will get 1.25 meter. Am I right guys? Yes, sir. 1.25 meter you will get the answer. Any problem over there? ठीक है, okay. Now let's go through the next problem. अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे, वेलोसिटी बतानी है आपको। यू विल हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो देखने में लगेगा आपको सर ये तो 15 आएगी, ये तो 15 आएगी, ओके, बट इट इज नॉट श्योर कि 15 आनी चाहिए। यहाँ पर तो हमने वैल्यूज ऐसे लिए हैं कि आपको इजी लग रहा है टू कैलकुलेट दैट, ठीक है, आपको इजी लग रहा है ये सब चीजें कैलकुलेट करना, क्योंकि हमने वैल्यूज ही ऐसी चूज किया है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पर आप लोग जरा मुझे वेलोसिटी बताएं, तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी बेटा? कैन यू कैलकुलेट दैट? यस सर, सबसे पहले क्या करूंगा, अब मेरा कौन सा ग्राफ आएगा? B से लेके C तक। नाउ देयर वुड द ग्राफ फ्रॉम B टू C। What I would have to calculate? सर आपको So we'll find the acceleration of B to C. बहुत अच्छे। Acceleration B to C, what is the final sir जी? What is the final sir जी? 10। Initial क्या है सर जी? माइनस का 20। Final minus initial. And what the time that has Then it will come -5 meter per second, sir. -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत अच्छा आंसर है, -5। नाउ लेट्स गेट अप्लाई। आपने कहा यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए सर जी 3 पर, यहाँ पर निकालनी है वेलोसिटी। तो बेटा ग्राफ में कहां पर अप्लाई करूं? अब आपकी मर्जी है। आप लोग इक्वेशन यहां से यहां तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप लोग यहां से लेके यहां तक के लिए भी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं बेटा। अगर आप लोग यहां से यहां तक इक्वेशन अप्लाई करेंगे बेटा, तो ये u हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो? एम आई राइट? Yes, sir. एंड u मस्ट बी इक्वल टू 20। बहुत अच्छे, v इक्वल टू u प्लस 80। ये कितना है सर जी? कैलकुलेट करना है। u हाउ मच? 20 है,
What the acceleration? -5. What the time? 1. Am I right, guys? You can just check the time. 2 to 3. Only 1 second will be there. Right, guys? So velocity you would have 15 meter per second. Is that clear, beta? Hanji. Yes, sir. Yes, sir. Now the Yeah. another student asked, sir, I don't want to solve it with this particular graph. I just want to solve it with this particular graph. Okay? तो अब यहाँ पर बताइए, अब आपको क्या सॉल्व करना है? यहाँ से लेके यहाँ तक. तो बेटा इस बार मुझे u सॉल्व करना है. Am I right? चेक कीजिए. क्या मुझे Yes, u सॉल्व sir. करना है? बहुत बढ़िया. और मुझे पता क्या है, इस बार v पता है. तो what I will do, v is equal to u plus 80. v कितना है? 10. u मुझे निकालना है एक्सेलरेशन -5 और ये कितना है? टाइम 1. तो u is equal to 10 plus 5. You would have 15 meter per second. गलत आ ही नहीं सकता. Never. लॉजिक आगे समझना. Okay, class. Yes. Is it understood to all? Tell me. Yes, sir. So I think it is okay to all. कितने लोगों को समझ में आ गया? Yes, I sir. think सबको समझ में आ रहा है. ठीक है ना? Okay. Now the last part that has been left. Let's go through the C to D section, guys. Let's go through the C to D section. अब अगर हम C to D section पर जाते हैं और मैं आपसे पूछ लेता हूं, just find out the velocity. अगर मैं आपसे velocity पूछता हूं तो velocity पूछना बेवकूफी है. Reason? Because Velocity is constant, sir. 10 The meter. velocity. is constant. बहुत बढ़िया. Velocity is constant. But now can you tell me? Such equation of motion है क्या? Whatever the equations of motions that we have, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन तब भी अप्लाई होती है जब बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है? टेल मी. Sir, only second equation applies. Only second equation that we can apply. ठीक है? Only second equation we can apply. Good. So here, depending on that, why only the second equation, beta? Why only the second equation? Because देखिएगा, when I will go through, तो बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूँ 4.1, 4.2 अप टू द 8 तक अगर मैं वेलोसिटी पूछता हूँ तो वो कांस्टेंट होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी. इफ आई विल गो थ्रू v इक्वल टू u प्लस 80, एक्सेलरेशन 0 है, 0, ये वाली टर्म 0 हो जाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मॉडिफाई हो जाएगी, v इज इक्वल टू u. इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, एप्लीकेबल, राइट? ओके. एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर एग्जांपल प्रॉब्लम्स. देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर एग्जांपल प्रॉब्लम फ्रॉम द एनसीईआरटी. सर, न्यूटन की जो हमारे पास ऑल थ्री इक्वेशंस जो हैं, if the acceleration is 0 and body is moving at the constant rate, ठीक है, body is moving with a constant velocity, then what will be the modified Newton's equations of motion? Newton's की modified equations क्या होंगी? So can you tell me बेटा, क्या इक्वेशन होंगी बेटा? What will be the modified equations of the Newton? हाँ जी. Sir, first and third will become v equals to u and second will become s is equal to ut. Good, very nice. Similarly, s is equal to ut plus half a t square. This term again will be equal to 0 because constant velocity, so acceleration will be 0. So you will get s is equal to ut. Modified equation, modified second equation. And v square is equal to u square plus 2s. Again the acceleration will be equal to 0. So velocity square is equal to u square plus 0. So v square is equal to u square. Again that will give you the same value. Is that right, guys? हाँ जी. आगे सबको समझ में? Yes, sir. It is very very. ठीक है. So with the help of equation of motion and the graphs, you can solve many more values. बहुत सारी values
जो डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ग्राफिकल मेथड इज अ कंप्लीट पैकेज, और दोज स्टूडेंट हु नोज द एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसका मतलब उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा, नो प्रॉब्लम विल गेट लेफ्ट। आ रहा है समझ में बेटा? इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ Yes, आई जस्ट sir. वांट टू आस्क द वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, देखता हूँ कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सॉल्व इट? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सॉल्व इट? लेट्स गेट चेक। Okay, so here let's go through the another problem. This is we have. It is 2, 4, 6, 8, 10, 12. T time is in second. Velocity 5 meter per second. 20 meter per second, like that. Now, what I will ask? Can you tell me the velocity at v equal to 5 second equal to question mark? So v5. Velocity at 7 equal to question mark. Just find out the answer. And v equal to 11, just question mark. Find out the answer fast, very fast. I want to check how many students can solve it. Many more students are there, and I want just check who can solve it fast and the right. Yes. The first answer, V5. Yes. What should be the answer? Fast. Okay. Anna. Yes, Anna. Anna, tell me. Don't you wanna tell? Okay, yes, message is okay, fine. Now let's go through. Now Sir, it's is my my turn. answer correct for V5? Yeah. Most of the students have solved the right answer. Most of the students solved the right answer. Now let's get checked. तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, अब देख लेते हैं. Here, what we have. Sir, अगर मैं आपसे 5 पर पूछता हूँ, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा? Yes. What will be the acceleration? 7.5 meter per second square. Very nice. So अगर V5 निकालता हूँ तो V is equal to U plus 80, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा मेरे पास 20, और मुझे 7 पे निकालना है. 7 पे निकालना है तो मेरी मर्जी है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ भी ले सकता हूँ और यहाँ से यहाँ तक. बोलो कहाँ से शुरू करना है, 4 to 5 या फिर 5 to 6? जो आप कहेंगे वो शुरू करेंगे. टेल मी, 4 to 5 और 5 to 6, कौन सा ग्राफ चाहते हो आप? दिस वन और दिस वन? फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ? टेल मी. Sir, first half. First half. So this is the U. Am I right? This is the U. V आपको निकालना है.
v आपको निकालना है। एक्सेलरेशन आप लोगों ने बताया 7.5, टाइम कितना है बेटा 1, So what? ठीक है ना, इज इट राइट? तो व्हाट शुड बी द Sir, आंसर? 12.5 meter per Yes, second. sir. 12.5 meter per second. Good. I know that each and every student can solve it very easily. Each and every student can solve it very easily. Similarly, what we would have V7, ये तो 5 आ गया, तो what should be the V7? U कितना आएगा Sir, बच्चे? it will 13.5 meter per second. Yes. तो 20 प्लस एक्सेलरेशन कितना आएगा इस बार? माइनस का 7. minus 7.5 meter per second. बहुत बढ़िया। तो ये Sir, भी कितना आ रहा है? 13.5. नो बेटा Sir, 12.5 ही होगा. 5 meter per second. Is that clear? So you can solve Yes. each and every value. ठीक है? Each and every value that you can solve very easily. So do we have to rejoin? No beta, that's okay. So I think everything is okay to all. Sir, acceleration will remain same, 7.5. No beta, you will have to calculate acceleration from 10 to 12. 10 to 12. Budget final velocity. Sir, zero. minus 2.5 meter per second square. Yeah, that would be the minus 2.5 Yes, sir. beta. ठीक है ना? You can just calculate. यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस अलग है, 15 है, वहां पर डिफरेंस, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप देखकर गैस नहीं कर सकते। देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि सेम है, देखने पे नहीं जाना कभी भी, नेवर। ओके, सभी को आया समझ में? Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है, सो Thank you, sir. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बाकी Thank you, चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड द फ्यू स्टूडेंट